ठीक है, वी विल सी आफ्टर द क्लास। देखते हैं ऑनलाइन हम यहीं पे ट्राई करेंगे उनको, तुम लोगों को देते हुए ये चीज दिख रहा है या नहीं। ठीक है, सो जस्ट सेकंड, एक आध सेकंड और रुक जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, मेरा रिकॉर्डिंग बटन जो है वो काम नहीं कर रहा। एक सेकंड प्लीज। Yeah, now it is recording. So we were busy with, you know, we were busy with the number functions. So we have seen the two number functions. One was round, another was truncate. So now the next one that we are going to see is, it is called ceil, C-E-I-L, we write in short. इसको बोलते हैं, the function is ceil. The argument is column oblique value. Column oblique value. एक इंसान कोई और वेट कर रहा है, let me check. So column oblique value, you can just note down. You know the meaning of ceiling. So इसका काम क्या है? It finds the smallest integer. It finds the smallest integer greater than or equal to the column expression or value. Column expression or value. तो अगर हम ये लिखते हैं, select ceiling, say 102.5. 102.5. So then ये बोल रहा है it is the smallest integer. ये कंप्लीट कर लोगे सेंटेंस, that is from Dual, that is agreed. हम बार बार ये चीज नहीं लिख रहे हैं. You now understand how to you write this statement. तो ये क्या करेगा? It gives you the smallest integer, okay, greater than or equal to the column expression or value. ठीक है, तो इससे smallest integer कौन सा होगा? Smallest integer जो है which is greater than or equal to the value, that is nothing but 103. सबसे इसके जस्ट ऊपर 102.1 भी देंगे और यहाँ पे अगर हम सीलिंग लिखते हैं तो ये क्या करेगा? It will still give you 103. सीलिंग का मतलब है these are two say boundaries. This is one is called ceiling, another one is called floor. अब तुम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई हमको सीलिंग बताओ, तो it will give you the smallest integer which is greater than this value. Similarly इसका some इंसान is there. So now this is what is ceiling. और जस्ट इसका उल्टा जो है सीलिंग का, the next function is floor. इसका भी वही है, column oblique value. तो ये हमको क्या देगा? It gives, note down, it gives the largest integer. It gives the largest integer less than or equal to column expression or value. ठीक है, largest integer less than or equal to column expression or value. तो इसके नीचे जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा से 105.2 है, तो द लार्जेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है that is nothing but 105. So floor will give you the largest integer less than this value which is stated. So that is what is the job of floor. Then next is
पावर, these are very simple ones, so that is why हम इसको स्क्रीन पे मैंने SQL prompt पे नहीं ट्राई करके दिखा. So power column oblique value comma n, यानी अगर हम लिखते हैं पावर 6,3, so what will be the meaning? The meaning is the 6 will be raised to the power 3 and you will get the answer. So definitely हम इसको लिखते यही है, select power from dual. From dual. This is how we write. So this is what is our power. The next one is exponent, exp n. ये क्या देगा? It raises e to nth power. कहने का मतलब है ये हमको दे रहा है e to the power n. ओके, e का वैल्यू फिक्स्ड है, e is equal to 2.71828 71828 These are for specialized users, of course, अगर हम exponent निकालना चाह रहे हैं तो. So then the next one that we take is SQRT. SQRT, column oblique value. SQRT, column oblique value. क्या देगा? Note down. It gives the square root of the column or value. Gives the square root of column or value. If the column or value is negative, it returns a null. Definitely negative का square root नहीं होता. Then sign, column oblique value. Sign. तो ये क्या देगा? It returns -1 if a column or value is negative. Returns 0 if the column or value is 0. And returns +1 if the column or value is positive. ओके, ठीक है. अब तुम बोलोगे कि सर ये कौन सा महान तरीका है भाई, -5 लिखा हुआ है, उसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये लिखने के लिए. ऐसे देख के साइन -5 फ्रॉम डुअल ये लिखेंगे तो ये हमको बताएगा कि हाँ भाई ये जो -5 जो है नेगेटिव, इसका आंसर होगा -1. इसको देख के अगर हमको पता चलने लगा कि -5 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो लाइफ में कष्ट है, माने सीरियसली कष्ट है कि इसको देखना पड़ा, हमको हेल्प लेना पड़ा. बट नो, इट इज नॉट दैट. अगर हमको ये देखना पड़ रहा है ना कि फाइंड आउट ऑल एम्प्लॉइज हु सैलरी इज ग्रेटर देन देयर कमीशन. ओके, तो तब हम क्या लिखेंगे? सैलरी इज ग्रेटर देन कमीशन कहने का मतलब है कि सैलरी माइनस कमीशन, इसका अगर हम साइन निकालें, इट शुड बी इक्वल टू 1, तब ना पॉजिटिव होगा, तब इसका मतलब हुआ कि सैलरी इज ग्रेटर देन द कमीशन. सो कंडीशन फील्ड में व्हाट वी डू इज वी राइट दैट वे दैट सैलरी माइनस कमीशन is equal to 1. That is what we write, salary minus commission. So that is where this sign is used. Next is ABS. You know, it gives the absolute value. It gives the absolute value of, you know, column or value. So ABS अगर हम देते हैं कमीशन माइनस सैल, कमीशन माइनस सैल, तो मान लेते हैं कि वैल्यू 5000 आ रहा था, तो इट विल गिव यू 5000. इट विल गिव यू जस्ट द वैल्यू 5000. दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. नेक्स्ट वन इन दिस सीरीज इज मॉड.
mod value 1 comma value 2. What it will do? It finds the remainder of value 1, finds remainder of val 1 divided by val 2 divided by val 2. ठीक है, इस तरह से ढेर सारा और फंक्शन है, लॉग है, साइन है, कॉस है, टेन है, दुनिया का, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक. तो यू कैन रेफर टू, नाउ यू नो हाउ टू यूज द फंक्शंस. So you can refer to any book on SQL and you can get hold of these functions and use the function. So what I am doing is I'm just using certain very important ones जो कि हम in general everyday life में हम लोग use करते हैं. Now let us see something very important, that is their date functions. Date functions. Now in this date functions, ये काफी हम लोगों को काम आता है, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे समय डेट जो हम लिखते हैं, द सिस्टम ट्रीट्स देम एज न्यूमेरिक. ठीक है, तो उसको न्यूमेरिक या कैरेक्टर बना देता है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना होता है डेट टाइप में, बिकॉज डेट फंक्शन, डेट टाइप उसका एक अपना ही काम. सो द फर्स्ट वन दैट वी सी इज sys date. Sys date. So sys date we write like this: select sys date from dual. So it gives you the current date from the system. So that is the first function in date, that is sys date. Now, with the date functions, we can use arithmetic operators. So using arithmetic operator, with date. Number one, date plus number. Date plus number. ये क्या करेगा? Say I write sys date plus 3. तो ये फंक्शन आज के दिन का सिस्टम डेट, बने हम ये मान ले रहे हैं कि आज का दिन का डेट दिखाना है, तो आज के डेट के साथ 3 दिन और जोड़ देगा एंड इट विल प्रोड्यूस अनदर डेट. कौन सा डेट होगा? 3 दिन बाद का डेट होगा. ओके, सिमिलरली ये डेट प्लस है तो डेट माइनस नंबर करेंगे, तो डेट माइनस नंबर करेंगे तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या देगा? ये आज के डेट से 3 दिन पहले का डेट देगा. लेट अस सी. So select sys date -3 from dual. Just a second, there is a phone call coming. Okay, I'll attend it later on. So from dual, 17 मई 2021. ये हम इसको 3 दिन पीछे कर दिया. सिमिलरली डेट माइनस डेट क्या देगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल दिस गिव? Days. Yes, perfectly all right. Number of days. लेकिन इसमें यू विल फाइंड, मान लो अगर हम ये देते हैं कि आज का डेट है 20 मई 21 माइनस 17 मई 21, ये अगर हम देते हैं ना, यू विल फाइंड इट विल गिव यू 3.19762, इस तरह का कुछ देना शुरू कर.
अरे तो व्हाट इज दिस पार्ट? दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट, बिकॉज ये डेट जब स्टोर करता है ओरेकल, वो उसके साथ टाइम इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है। यानी जिस समय हम स्टोर कर रहे हैं उस समय व्हाट इज द टाइम, कितना आवर, कितना मिनट, कितना सेकेंड है, वो भी स्टोर कर रहा है। और जिस समय पूछ रहे हैं आज के समय में व्हाट इज द मिनट, आवर, मिनट एंड सेकेंड, एंड उस दिन क्या आवर, मिनट एंड सेकेंड था, उसको माइनस करने के बाद यू गेट द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो डेट माइनस डेट, ये डेट प्लस नंबर गिव्स यू अ डेट, डेट माइनस नंबर गिव्स यू अ डेट, डेट माइनस डेट गिव्स यू नंबर ऑफ डेज। ओके, सिमिलरली डेट प्लस नंबर डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, ये क्या करता है? जस्ट नोट डाउन, इट एड्स द नंबर ऑफ आवर्स, it adds a number of hours to a date, producing a date. इतना नंबर ऑफ आवर्स इसमें ऐड कर देगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24, और ऐड करने के बाद एक नया डेट होगा, बिकॉज दोज मेनी आवर्स आर एडेड टू दैट डेट। आज के दिन में अगर इसके साथ हम 15 घंटा ऐड कर दें तो दैट मे बी टुमारोज डेट, सो इट विल प्रोड्यूस अनदर डेट, ठीक है, बाय एडिंग दोज मेनी नंबर ऑफ आवर्स। ये दोज मेनी नंबर ऑफ आवर्स उसमें ऐड करें। द नेक्स्ट वन इज मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, ठीक है, डेट 1 कॉमा डेट 2। ओके, ये डेट 1 और डेट 2, इसमें इसके बीच में कितने मंथ्स हैं वो हमको बताएगा। एंड डेफिनेटली अगर 4 महीना हुआ तो 4 महीना के बाद भी यू विल फाइंड 3, 7, 6, 2, 1, ये सब कुछ आ रहा है। आई टोल्ड यू इट इज बिकॉज ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन स्टोर। अब यहाँ एक चीज है, ये वाला डेट अगर बढ़ा देंगे और इसको छोटा देंगे तो आई विल गेट द आंसर रिजल्ट इन पॉजिटिव। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आई विल गेट द रिजल्ट इन नेगेटिव। तो दैट इज अप टू यू, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये पॉजिटिव क्या आ रहा है। कौन डेट से कौन डेट आगे पीछे कर दे रहे हैं, तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज एड months, add months, date, comma, n. Okay, this n has to be an integer. ये सब तो कमांड देखते साथ ही पता लग रहा है कि व्हाट आर दीज। इस एक जो डेट है उसके साथ कितना नंबर ऑफ मंथ्स ऐड कर देगा। माने आज अगर ये 20 मई है, उसमें हम 3 ऐड करवा दें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक डेट देगा, ठीक है। लेट अस जस्ट चेक फॉर से सिलेक्ट add underscore months, sys date, comma 3 from 12. You can see it generates a date after 3 months, that is 20th August 21. Okay. Next one is next day. Next underscore day. Date 1, comma CHAR. Now, यहाँ पे दो चीज है, ये कैरेक्टर को हम नंबर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेट मी टेल यू हाउ। इसका काम क्या है, हम इससे अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई सिलेक्ट नेक्स्ट डे sys date, comma मंडे, तो हम इससे एक्चुअली पूछ रहे हैं कि भाई आज का दिन के बाद दूसरा नेक्स्ट जो मंडे आएगा
वो क्या है भाई, कितना तारीख है. ओके, सो इट विल रिटर्न मी दैट डेट, that it will return me that date. ये हम ऐसे नहीं लिख के, I could have written like this also. Select next day, sys date. ठीक है. So Sunday is considered to be a 0. Okay. Okay, not 0, 1. So what we do is say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So they are numbered like this. तो इसके मंडे की जगह पे आई कुड हैव रिटन 1 ऑल्सो. तो ये भी सेम चीज देगा. इसका मतलब है कि हम इससे पूछ रहे हैं कि आज के बाद जो है, आज के डेट से आने वाला मंडे जो है वो कौन तारीख पड़ेगा. सो दिस आई कैन डू इट दिस वे. सो दैट इज नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे, दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट डे. Then the next one is last day, date. Okay, last day, date. ये हमको क्या बताएगा कि उस महीना का जो लास्ट दिन कौन सा है, कौन महीने का, जो महीना इस डेट में दिया हुआ है. कहने का मतलब इफ आई एम राइटिंग सिलेक्ट last day, sys date, okay, from dual. So then the answer will be 31st May 21. So then you will say कि भाई इसको देखने का जरूरत क्या था. ये इस तरह हम I am giving you example to see the results. बट इन रियलिटी ये कब यूज होगा ना, जब एक ढेर सारे लोग हैं कि इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं, अब उनका रिटायरमेंट एज देखना है. तो हमको देखना होगा कि अच्छा जिस महीना में वो 65 साल पूरा कर रहे हैं उसका एंड डे कौन सा होगा, उस दिन उनका रिटायरमेंट डेट होगा. तो वहां पे एक बार में जब इतने करोड़ों रोज के ऊपर जब हम काम करेंगे, उस समय दीज फंक्शंस बिकम वेरी हैंडी. अब आज का महीना का लास्ट डे 31 तारीख है मई का, ये देखने के लिए हमको इस फंक्शन को यूज करने का जरूरत नहीं था. Then the next one is round. Round date 1. Yeah, date, not date 1. Date. Sorry. Round date. ठीक है. Write down. It returns the date. It returns the date with time set to 12 a.m. midnight. ये है क्या? इतना देर तक तो हमको डे और उसके नंबर ऑफ डेज के बाद ये सब ये फ्रैक्शनल नंबर आ रहा था. हमको ये सब नहीं चाहिए. बड़ा दिक्कत हो रहा है कि भाई कौन क्या है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कितना फ्रैक्शनल नंबर को हैंडल करें. इट इज बेटर कि हम जितना भी उन लोगों का डेट सब है सबको राउंड कर. तो राउंड कर दिए तो होगा क्या, जितना भी डेट के साथ जो भी टाइम इंफॉर्मेशन था सब रात के 12 बजे में कन्वर्ट हो जाएगा. एवरीबॉडी इज राउंडेड टू, डेट रह गया बट दे आर राउंडेड टू 12 AM मिडनाइट. या अब हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से खोजेंगे भाई कौन सीनियर है कौन जूनियर है. इस फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं चलने वाला. सो दैट इज व्हाई दिस राउंड फंक्शन इज देयर. दूसरा राउंड डेट comma month. Round date. Now month is a keyword. ये month ही रहेगा. यहाँ पे मैंने जनवरी फरवरी नहीं लिखते हैं. It is month is a keyword, fixed word month. So ये क्या करेगा? Just note this down. Round अगर हम करते हैं तो क्या करेगा? It returns the first of the month. It returns the first of the month containing the date. Containing the date. If date is in the first half of the month. If
date is in the first half of the month. Otherwise, it returns. Otherwise, it returns the first of the following month. यानी यहां पे अगर ये डेट होता 14 मई 21, तो इसको देने से इट विल रिटर्न यू 1 मई 21। लेकिन अगर इस डेट में हम आज का डेट दिए हुए हैं 20 मई 21, तो इट विल रिटर्न यू 31 मई 21। इस हिसाब से ये राउंड ऑफ कर रहा है। अगर आधा से पहले का डेट दिया हुआ है तो इट विल राउंड इट ऑफ टू द फर्स्ट ऑफ द सेम मंथ। ओके, I'm sorry. It will not return you 31st May. I'm very sorry. That will return you the first of the following month, that is 1st June 21. तो अगर आधा से पहले का है तो it will return you first of that month, और आधा के बाद का है तो the first of the next month. That is what it will return. So this is what is round date month. ये अगर ऐसा है तो I can use round date year. Year is a keyword. इसको you cannot change. क्या करेगा? आज का दिन देंगे तो it will return me 1st January 21। और यही चीज अगर हम यहाँ पे आज का डेट मान लेते हैं ये होता 20 अक्टूबर 2021 होता, तो it will return you 1st January 22। जो चीज मंथ के केस में हो रहा था मंथ वाइज चेंज हो रहा था, वही चीज ईयर के केस में ईयर के ऊपर चेंज होगा। If the date lies in the first half of the year, it will generate the first of that year. And if the date lies in the second half of the year, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर कोई डेट है, it will give you the first of the corresponding or the next year, subsequent year. Okay. Next, trunk. Trunk. Date, comma, care. Date, comma, care. Care है तो single quotes में। Okay. Now, इसको लिख लो। Finds the date of first day of the month, containing in date, when care की जगह पे is equal to month, ये अगर हम लिखते हैं तो care is equal to month, ठीक है। तो ये हमको क्या बताएगा? ट्रंक डेट क्या बताएंगे तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बता देगा हमको। मैंने यहाँ पे अगर हम ये लिखे होते ट्रंक सिस डेट month, तो देन इट रिटर्न्स मी सिस डेट, आज का डेट दे रहा है, ये हमको रिटर्न करेगा 1 मई 21। और इसके कैरेक्टर की जगह पे अगर हम दूसरा डाल दें तो दूसरा जो हम डाल सकते हैं दैट इज नथिंग बट year. So then it gives me, ये अगर देते तो it will give me 1st January 21. Okay. So it will give me that. So this is what is this trunk part. इसमें एक चीज है, नोट लिख लो। Trunk function is useful. Trunk function is useful when we want to remove the time portion of the day. When we want to remove the
time portion of the day. Okay. Now, conversion functions. Conversion functions. Okay. Number one, to char, to underscore char, number, ठीक है, और डेट, और डेट अगर दे रहे हैं तो उसके साथ हमको डेट का फॉर्मेट भी देना पड़ेगा. ओके, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट ये हम दे सकते हैं. सो जस्ट नोट डाउन, ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स नंबर और डेट, it converts number or date to a character format FMT, to a character format FMT. जो दिया हुआ है उस फॉर्मेट में उसको चेंज कर देगा, बट एक कैरेक्टर अगर उसको देते हैं तो फॉर्मेट देते हैं, तो नहीं देता है तो विदाउट फॉर्मेट जो भी हम दिए हुए हैं उस तरीके में उसको चेंज करेगा. You can give this a try. You install Oracle and give it a try. To number char, क्या करेगा, इस कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा. तो नंबर में अगर कैरेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आर पॉसिबल, whereas कैरेक्टर में बहुत न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में नॉट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल. तीसरा, टू डेट, बहुत जगह यूज करेंगे ये टू डेट, दैट इज char FMT. FMT, तो FMT बहुत सारा होता है, यू नो, DD, MON, YY, DD, MON, YYYY, MM, DD, YY, MM, DD, YY, कुछ भी, इट कैन बी एनी टाइप. इसके अलावे भी I can also write the time and hour also. ठीक है, वो भी हम इसके साथ इनकॉर्पोरेट करवा दे सकते हैं कि अगर हम चाहें तो टाइम, आवर सब हम डाल सकते हैं इसमें. सो देयर आर मेनी फॉर्मेट, जितना भी डेट का फॉर्मेट हम जानते हैं वी कैन गिव. लेकिन ये क्या करता है, जब हम डेट को डालते हैं ना, whenever we write in the query, when we write date, say select asterisk from EMP where higher date equal to, हम एक डेट दे दिए 20, 20, 5, 21, ये एक डेट दे दी, बट दिस डेट इज एट टाइम्स टेकन एज कैरेक्टर. तो ये कैरेक्टर लेगा और डेटाबेस में जाके डेट से कंपेयर करेगा तो बोलेगा नॉट फाउंड. तो तब हमको करना क्या पड़ता है ना, ये पूरा जो डेट दे रहे हैं इसको हम इक्वल टू लिखते हैं टू डेट, कन्वर्ट कर दिए इस चीज को, अंदर हम लिख दिए भाई 25, 21. इसको हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, DD MON YY, जिस फॉर्मेट में हमारे यहाँ पे डेट स्टोर्ड है. हम तो देख ही सकते हैं कि हायर डेट किस तरह दिया हुआ है, YY है या YY है, उसके हिसाब से यू कन्वर्ट दिस, देन ओनली दिस क्वेरी इज कंप्लीट. नहीं तो बोलेगा कि ये नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि दिस इज अ कैरेक्टर, सिंगल कोट के अंदर हम डाल दिए. तो उस इन दोज केसेस जब भी हम डेट वगैरह लेके काम कर रहे हैं, इफ यू आर स्टक यू यूज दिस टू डेट, एकदम डायरेक्टली इसको यूज कर दो कि इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है. ठीक है, सो दीज आर फ्यू डेट फंक्शंस दैट वी हैव यूज्ड. Now
let us see one very powerful function in SQL. That is called decode function. Decode function. The syntax of this is decode column oblique expression comma search one comma result one comma search, अगर चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं search to result to comma, ऐसे हम जा सकते हैं from table और tables, ठीक है। अगर हम from माने from लिख रहे हैं तो यहाँ select भी होगा, select के साथ ही ये यूज होता है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, इट वर्क्स काइंड ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है जॉब सबका देखो, सबका जॉब देखो, अगर वो क्लर्क है तो उसको वर्कर बोलो, अगर वो मैनेजर है तो उसको बॉस बोलो, और नहीं है तो बोलो कि नहीं अनडिफाइंड है। तो इस तरह का क्वेरी हम लिखना चाहते हैं। इट इज काइंड ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ दिस इज माय सर्च पार्ट then this is the result. If this is my search, this is the result. नहीं है तो the default part. Let me see that. Let us see that. Okay. Select name comma job. Select name comma job comma decode job. जॉब को डिकोड करने बोलना, और बोल रहे हैं कि वहां अगर क्लर्क मिले तो उसको वर्कर बोला जाए। सर्च वन रिजल्ट वन क्या है, वर्कर, वर्कर, ओके। नहीं तो अगर मैनेजर मिले MANA, मैनेजर मिले तो हम उसको बोलेंगे बॉस, दैट इज बॉस। नहीं तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जानते क्या है, इट्स अनडिफाइंड। तो दिस इज द डिफॉल्ट पार्ट, यू सी। और इसको हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं, अलियास दे देते, नहीं तो कॉलम का हेडिंग इतना बड़ा हो जाएगा। सो